getting into the deep introduction to equation of motion, let's have a rapid revision of motion chapter, what we have already done. Motion chapter, we have studied about the moving objects. So moving object can move in rectilinear path, straight line path, or translational motion, right? So straight line motion is also known as rectilinear or translational motion. Then we'll talk about circulatory or rotatory motion and oscillatory and vibratory motion. These are the three types of motion that occurs in universe. So basically in this chapter what we are going to study is only straight line motion and as well as some kind of circulatory motion. Okay, so we have discussed about rest and motion part, in which a body is said to be at rest if it doesn't change its position with respect to time. It's said to be in motion if it changes its position with respect to time. Similarly, we have talked about distance as well as displacement. Distance is the actual path covered by the body and displacement is the shortest path covered by the body. Uniform and non-uniform motion. Uniform motion, equal distance traveled in equal interval of time. Non-uniform, equal distance in unequal interval of time or unequal distance in equal interval of time, right? So we already talked about speed as well as velocity, in which we have done the speed is what? The distance covered by the body in particular time, and velocity, displacement traveled by a body in particular time, right? So we have talked about scalar as well as vector quantities. Scalar is a speed as well as distance, and vector is a displacement as well as velocity, whereas scalar contributes only magnitude and vector contributes magnitude as well as direction. So in case of average speed, if I'll talk about, in average speed, total distance upon total time is average speed. But if I'll talk about average velocity, so what will be the average velocity? Average velocity will be equals to final V plus U divided by T. We have done this. Average velocity V plus U, final plus initial divided by 2. That from here you can calculate the average velocity. Then we have done uniform, non-uniform, instantaneous. Instantaneous I talked about, already told you that instantaneous means at a particular point, and uniform means you already get the idea of uniform as well as a average, and non-uniform speed or non-uniform velocity means variable speed or variable velocity. Then we have talked about acceleration, in which we have done the acceleration is change in velocity divided by time. It means V minus U divided by T. This is known as acceleration, and acceleration is of two types, positive and negative. Positive acceleration means when you are increasing your speed continuously. Negative acceleration, which is also known as retardation, so it means that when you are decreasing your speed, that is known as decreasing your velocity, that is known as negative acceleration, or you can say the retardation. So acceleration is again of two types, uniform as well as non-uniform acceleration. In case of uniform acceleration, if velocity increase or decrease by equal interval of time, by equal amount in equal interval of time, this is known as uniform acceleration. By unequal interval of time is known as non-uniform acceleration. Then there are three equations of motion that we have already, I have given you the equation of motion, but in this video we'll drive these equations because these are very important according to the exam point of view. So what were these equations? First equation was V is equals to U plus AT. Second equation was S is equals to UT plus half AT square, and the third one is V square minus U square is equals to 2AS. Before that, I think you already got the idea of numerical part as well as the conceptual part, what we have already discussed. So in this video we are going to talk about three equations of motion. So let's begin. By the graphical method we have three equations, right? So in this, if I'll talk about the equation of motion for uniformly accelerated motion, right? So we have done this by the graphical method. So we are going to do this by this method only, because in your syllabus graphical method is the only method by which you can drive these equations. So here we have taken VT graph, VT. VT means V along y-axis and T along x-axis, right? So first relation is velocity time relation, that we need to drive V is equals to U plus AT. This is the equation we need to drive from here, right? So what we have done, what we have to do here is firstly see the diagram and keep it with you and able to understand it very quickly, that firstly the object is at rest, right, at point O, right? So how to prove it? So basically
यहाँ पे ओ हमारे ओ जहाँ पे हमारा पॉइंट ओ है वहां पे बॉडी रेस्ट पे है, ठीक है। फिर जब वो ए पॉइंट तक जाती है तो वो क्या देखो क्या चीज हो रहा है, टाइम इज नॉट चेंजिंग बट द पोजीशन इज चेंजिंग, टाइम इज नॉट चेंजिंग बट द पोजीशन इज चेंजिंग, तो वी कंसीडर दैट रेस्ट ओनली, राइट। सो इनिशियल पोजीशन उसकी क्या होगी, जब वो ए पॉइंट तक पहुंची तो मान लीजिए कि उसकी स्पीड यू थी, ठीक है। तो ये रेस्ट पे ही है अभी भी क्योंकि टाइम चेंज नहीं हो रहा है, ठीक है। तो टाइम इज नॉट, सो इन दिस डायग्राम व्हाट वी हैव टू डू इज कि ओ पॉइंट पे हमारी बॉडी रेस्ट पे है, ठीक है। तो हमने क्या किया, हमने कोई पॉइंट मान दिया कि मान लो कि ओ पॉइंट है चाहे वो ए पॉइंट है, यहाँ पे भी हमारी बॉडी रेस्ट पे ही होगी, लेकिन यहाँ के बाद उस बॉडी ने क्या किया, सडनली एक्सलरेट होनी शुरू हो गई, सडनली उसने क्या कर दिया, वेलोसिटी के साथ साथ टाइम के अकॉर्डिंग उसने बढ़ना शुरू कर दिया। बढ़ने के बाद वो कहाँ पहुंची, एट पॉइंट बी पे पहुंची, कहाँ पहुंची, एट पॉइंट बी पे पहुंची। अब अगर वो एट पॉइंट बी पे पहुंची तो हमारे पास यहाँ पे क्या चीज आएगी कि अगर बी पे पहुंच गई है तो ये इसकी फाइनल पोजीशन हो जाएगी, राइट, यानी फाइनल वेलोसिटी हो जाएगी। यहाँ पे ओ से ए तक हमारी क्या है, इनिशियल वेलोसिटी कितनी है, यू, और यहाँ पे हमारे पास ये बी पे पहुंच गया, अगर ऑब्जेक्ट हमारा बी पे पहुंच गया तो यहाँ पे फाइनल वेलोसिटी कितनी हो जाएगी, दैट फाइनल वेलोसिटी विल बी यू। टोटल मतलब कहाँ से, ये डी से लेकर बी तक। सो अब इतने में टाइम भी लगा, टाइम तो आपका कांस्टेंट ही रहेगा, राइट। सो टाइम तो आपका क्या रहेगा, सेम ही रहेगा ना। ए से लेकर सी तक उसने कितना टाइम लिया, टी टाइम लिया, और ओ से लेकर डी तक जो ये वाला टाइम है वो ये वाला टाइम यहाँ पे कैसे आया। अब देखिए अगर आपको पता लग रहा होगा ओ ए सी डी एक आपकी रेक्टेंगल बन रही है, रेक्टेंगल की दोनों साइड्स इक्वल होती हैं। अगर मैं मान रही हूं कि ये मेरा यू है तो यहाँ पे ये भी क्या होगा, यू होगा। अगर मेरा ओ से डी तक टी टाइम है तो यहाँ पे भी कितना टाइम होगा, टी टाइम होगा, ठीक है। तो मैंने वेलोसिटी टाइम रिलेशन निकालना है। वेलोसिटी टाइम रिलेशन मतलब क्या निकालना है, मैंने निकालनी है एक्सलरेशन, राइट। तो अब एक्सलरेशन देखिए, यहां से यहां तक बॉडी एक्सलरेट हुई ए से बी पॉइंट तक, तो यहाँ पे मैंने एक्सलरेशन कहां से निकलेगी, मेरी एक्सलरेशन ए, स्मॉल ए लिखना है, इसको कैपिटल ए मत लिखना क्योंकि कैपिटल ए एरिया रिप्रेजेंट करता है। तो दैट विल बी स्लोप अंडर द कर्व, स्लोप अंडर द कर्व। तो ये क्या हो जाएगी, मेरी एक्सलरेशन हो जाएगी, राइट। अब ये हमारे पास किसके इक्वल होती है, स्लोप। बच्चे आपने ये चीज याद रखनी है, अभी आपके सिलेबस में सिर्फ वैल्यू है, बट अदरवाइज इन 10th क्लास यू विल रीड द टिग्नोमेट्रिक वैल्यूज, बोलते हैं उनको टिग्नोमेट्रिक वैल्यूज। टिग्नोमेट्रिक वैल्यूज के बारे में आप वहां पे पढ़ोगे, जिनमें से एक वैल्यू हम यहाँ पे ले रहे हैं, वो वैल्यू है tan थीटा। यहाँ पे एक पर्टिकुलर एंगल पे ए से बी तक जा रही है ना, एक पर्टिकुलर एंगल बन रहा है, ए से बी तक जा रही है वैल्यू। तो यहाँ पे क्या आ रही है कि हमारे पास कॉन्स्टेंटली गेन करता जा रहा है, वेलोसिटी टाइम के साथ साथ इंक्रीज करती जा रही है यूनिफॉर्मली, राइट। सो यहाँ पे हमारे पास क्या आएगा कि tan ऑफ थीटा वी आर टेकिंग, ठीक है। तो tan ऑफ थीटा क्या बताएगा आपको, स्लोप बताएगा। tan ऑफ थीटा क्या बताएगा, स्लोप बताएगा। क्लियर होगी बात। और वो किसके इक्वल होती है, वो इक्वल होती है बच्चे, ये हमारे पास तीन चीजें होती हैं। ये हमारे पास, अब देखिए अगर मैं बोलूं इन ट्रायंगल, एक ट्रायंगल बन रही है हमारे पास ABC, है ना, इन ट्रायंगल ABC परपेंडिकुलर क्या होगा कि जो आपका स्ट्रेट लाइन होगी, यहाँ पे स्ट्रेट लाइन क्या है, BC। तो BC और हाइपोटेन्यूज, तीन चीजें होती हैं बच्चे ट्रिग्नोमेट्री में। फर्स्ट वन इज योर हाइपोटेन्यूज होगा, और फिर उसके बाद आएगा आपके पास जो हाइपोटेन्यूज क्या होता है, स्लैंटिंग लाइन जो होती है, स्लैंटिंग लाइन, उसको बोलेंगे हाइपोटेन्यूज। उसके बाद बेस का मतलब क्या होता है, ये जो नीचे वाला होता है इसको बोलते हैं बेस, जिसके ऊपर पूरी की पूरी इमारत खड़ी होती है, ठीक है। तो बेस इज द बेस लाइन, जिसको बोल दोगे आप बेस लाइन, मतलब जो ग्राउंडेड एरिया होता है। फिर आता है परपेंडिकुलर का मतलब क्या होता है, परपेंडिकुलर मीन्स आपके पास स्ट्रेट लाइन जो होती है, स्ट्रेट लाइन। अब इनमें से स्ट्रेट लाइन कौन सी है, दिस इज स्ट्रेट लाइन। सो जो आपके पास tan थीटा होता है वो होता है परपेंडिकुलर अपॉन बेस। अब यहाँ पे परपेंडिकुलर क्या हो गया, BC, राइट। परपेंडिकुलर क्या हो गया, BC। अब बेस कितना हो गया, AC, तो BC अपॉन AC, ठीक है। फिर BC, ये BC क्या है हमारे पास, दिस वन। हमें क्या पता है, हमें BD की वैल्यू पता है कि फाइनल कितनी है हमारे पास, ओके।
फिर उसके बाद हमें यहाँ पे क्या पता है, बी डी क्या होता है, वी, और ये हमें पता है सी डी यू। अगर ये यू है, ये पूरा वी है, तो बीसी हमारे पास क्या हो जाएगा, व्हाट विल बी द बीसी, बीसी हमारे पास हो जाएगा बी डी माइनस सी डी। बी डी माइनस सी डी लिख सकते हैं इसको, बी डी माइनस सी डी। देखो तो टोटल में से इसको कम कर देंगे, पूरे में से इसको कम कर देंगे, ये निकल जाएगा। तो बी डी माइनस सी डी डिवाइड बाय ए सी, राइट। फिर उसके बाद हमारे पास क्या आएगा नेक्स्ट, बी डी की वैल्यू कितनी है हमारे पास, वी, टोटल वी है, वी माइनस सी डी की वैल्यू कितनी है, यू, ए सी की वैल्यू कितनी है, टी, इज इक्वल्स टू ए, राइट। अब इस टी को इधर ले जाते हैं तो क्या बन जाएगा, ए टी इज इक्वल्स टू वी माइनस यू, राइट। सो u प्लस ए टी इज इक्वल्स टू वी, या आप बोल सकते हो देयरफॉर v इज इक्वल्स टू यू प्लस ए टी। ये मेरे पास क्या आ गई, इक्वेशन, फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन हमने प्रूव कर दी बाय द मेथड ऑफ ग्राफ। ठीक है, तो हमने ग्राफिकल मेथड से वेलोसिटी टाइम रिलेशन को प्रूव कर दिया। इट्स अ वेरी सिंपल मेथड। ठीक है, तो इसमें अब आपने इसको ध्यान से पढ़ना है और करना है। इक्वेशन ऑफ मोशन है हमारे पास पोजीशन टाइम रिलेशन। इसमें क्या करेंगे हम, सिंपल यहाँ पे हमने प्रूव करनी है एस इज इक्वल्स टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। इसके लिए भी हम सिंपल वीटी ग्राफ ही फॉलो करेंगे। वीटी ग्राफ मतलब क्या होता है, वेलोसिटी टाइम ग्राफ, इसी को फॉलो करेंगे। तो चलिए वीटी ग्राफ बनाते हैं दोबारा से। यहाँ पे हमारे पास एक्स एक्सिस है, ये मेरे पास वाई एक्सिस है, यहाँ पे पॉइंट ओ है, ए पॉइंट तक बॉडी अगर जाती है तो रेस्ट पोजीशन पे ही होती है। फिर उसने सडनली गेन किया, वो पहुंच जाती है बी पॉइंट पे। ठीक है, फिर हमने क्या किया, इस बी को ज्वाइन कर दिया नीचे और ये बन गया मेरे पास टी पॉइंट। फिर मैंने ए को भी ज्वाइन कर दिया यहाँ पे, वो बन गया सी पॉइंट। ठीक है, तो ये अपनी तरफ से हमने बनाया। उसके बाद यहाँ पे ये क्या हो जाएगी, इनिशियल वेलोसिटी, ये भी हमारे पास इनिशियल वेलोसिटी। टोटल ये क्या बन जाएगी हमारे पास, फाइनल वेलोसिटी v एट पर्टिकुलर एंगल थीटा। ठीक है, और ये मेरे पास AC क्या है, दिस इज द टाइम। अगर ये टाइम है तो ये भी हमारे पास क्या आ जाएगा, टाइम आ जाएगा। सो अभी हमने क्या करना है, तो टोटल हमारे पास क्या आ रहा है, टोटल हमारे पास आ रहा है, हमने निकालना है यहाँ पे एरिया अंडर द ग्राफ। यहाँ पे अब एरिया अंडर द ग्राफ क्या है, एरिया अंडर ग्राफ। इफ आई टॉक अबाउट एरिया अंडर ग्राफ, वो क्या चीज है, एरिया हमारे पास क्या है कि सबसे पहले तो एरिया ऑफ रेक्टेंगल, टोटल एरिया कितना आ रहा है, एरिया ऑफ रेक्टेंगल कितना है बच्चे, एरिया ऑफ रेक्टेंगल ओ ए सी डी, ओ ए सी डी, ओ ए सी डी, प्लस दूसरा क्या है, एरिया ऑफ ट्राइंगल कितना है, एरिया ऑफ ट्राइंगल कितना होता है, ए बी सी। ठीक है, अब आपको पता है एरिया ऑफ रेक्टेंगल का मतलब क्या होता है, व्हाट इज द एरिया ऑफ रेक्टेंगल हेयर। एरिया ऑफ रेक्टेंगल क्या है हमारे पास, कितना होता है एरिया ऑफ रेक्टेंगल, लेंथ इनटू ब्रेड्थ। अब यहाँ पे लेंथ क्या है हमारे पास, यू, यू इनटू लेंथ इनटू ब्रेड्थ होता है। अब लेंथ किसको लेंगे हम, सॉरी लेंथ किसको लेंगे हम, यहाँ पे लेंथ ले लेते हैं हम यहाँ पे AC मल्टीप्लाई ब्रेड्थ कितनी हो जाएगी, OA, AC OA, चाहे कोई भी साइड ले लो, आपको पता है दोनों साइड इक्वल होती हैं, प्लस एरिया ऑफ ट्राइंगल। एरिया ऑफ ट्राइंगल कितना होता है, हाफ बेस इंटू हाइट, हाफ बेस इंटू हाइट, यही होता है ना। यहाँ लिखते हैं हाफ बेस। बेस का मतलब क्या, ये हमारे पास बेस हो गया, AC हाइट कितनी हो गई, व्हाट विल बी द हाइट हेयर, हाइट विल बी योर कितनी, BC। हेयर वी हैव टू टेक हाइट कितनी लेंगे, BC। ठीक है, फिर हमारे पास नेक्स्ट क्या करना है, जस्ट पुट द वैल्यू हेयर। तो AC किसके इक्वल है, AC इज इक्वल टू T। OA किसके इक्वल है, OA विल बी U प्लस हाफ, AC विल अगेन T, और BC को हमने क्या लिखा था, ये था BC, V में से U कम करेंगे, V माइनस U, ये हमारे पास आ गया, राइट। सो यहाँ पे इसको ऐसे लिख सकते हैं, UT प्लस हाफ T। अब V माइनस U आपने फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन में किया था, फ्रॉम, आपने लिखना है फ्रॉम फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन, क्या था वो, V माइनस यू इज इक्वल्स टू 80, ये किया था। तो यहाँ पे भी हम V माइनस यू की जगह पे 80 लिख सकते हैं, बिल्कुल लिख सकते हैं। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, इंटू 80, राइट। सो UT प्लस
हाफ ए टी स्क्वायर। ये निकल गया। अब बात ये आती है हमारे पास, जो ये एरिया पूरा कवर किया है हमने, जो ग्राफ में पूरा एरिया कवर किया है, ये एक ऑब्जेक्ट ने डिस्टेंस ही तो कवर किया है पूरा, यहां से लेकर यहां तक पूरा डिस्टेंस ही तो कवर किया है। तो हम इस एरिया अंडर ग्राफ को क्या कंसीडर कर सकते हैं, डिस्टेंस, और यहाँ पे एस विल बी द डिस्टेंस। अगर आपको पूछा जाए एस क्या है, एस इज द डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय द बॉडी, डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय द बॉडी। u इज द इनिशियल स्पीड, u हमारे पास क्या है, एक इनिशियल स्पीड है। उसके बाद t टाइम टेकन, एंड a विल बी द एक्सलरेशन ऑफ द बॉडी। ये हमारे पास क्या हो जाएगी, एक्सलरेशन। क्लियर? ओके, लेट्स टॉक अबाउट थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन इन विच विल हैव, थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन में हमने बात करनी है पोजीशन वेलोसिटी रिलेशन की। इसमें टाइम नहीं आएगा। पोजीशन वेलोसिटी रिलेशन। अब इसमें क्या बात करेंगे हम, वी हैव द फॉर्मूला v स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर इज इक्वल्स टू 2a। सेम हमारे पास vt ग्राफ ही हमने यहाँ पे भी लेना है, ग्राफ सेम रहेगा। ग्राफ को आप एक बार इसको रिमेम्बर कर लोगे, अंडरस्टैंड कर लोगे, तब आपको प्रॉब्लम नहीं आएगी। ठीक है, तो सबसे पहले यहाँ पे हमने लेना है t, और ये हमारे पास v है, सॉरी v नहीं, अभी हम करेंगे इसको, यहाँ तक तो पूरा v पहुंच जाता ना। ओके, तो फिर हमारे पास ये पॉइंट o है, यहाँ पे हमारे पास a पॉइंट है, o से a तक टोटल u है, o a से b तक पहुंचा, b तक पहुंचने के बाद टोटल यहाँ पे कितना उसने किया, वेलोसिटी v हो गई, ये पॉइंट d हो गया। यहाँ पे हमारे पास कौन सा पॉइंट आ गया, c पॉइंट आ गया, और ये वाला कौन सा पॉइंट है हमारे पास, दिस विल बी योर u, और पूरा आपके पास v है, ये u है, तो ये आपके पास ऑटोमेटिकली v माइनस यू हो जाएगा। ये मेरे पास t है। ठीक है, तो उसके बाद अब हमने दोबारा से इसको बनाना है। अब देखिए, हमने इसका रेक्टेंगल लेके भी देख लिया, ट्राइंगल लेके भी देख लिया। अब हम पोजीशन वेलोसिटी रिलेशन निकाल रहे हैं। तो एरिया अंडर द कर्व जो आएगा आपके पास, एरिया अंडर कर्व या एरिया अंडर ग्राफ भी बोल सकते हैं, तो दैट विल बी इक्वल्स टू, किसके इक्वल आएगा, एरिया ऑफ ट्रेपीजियम, एरिया ऑफ ट्रेपीजियम। अब एरिया ऑफ ट्रेपीजियम क्या होता है, ट्रेपीजियम की शेप आपको दिख रही है शायद यहाँ पे, ये हमारे पास ट्रेपीजियम होता है, ये वाला पूरा, दिस इज द शेप ऑफ ट्रेपीजियम। ठीक है, एरिया ऑफ ट्रेपीजियम। अब एरिया ऑफ ट्रेपीजियम मेरे पास क्या है, ओ ए बी डी, ओ ए बी डी। ठीक है, तो एरिया ऑफ ट्रेपीजियम का फॉर्मूला क्या होता है, एरिया ऑफ ट्रेपीजियम होता है आपके पास हाफ सम ऑफ पैरेलल साइड, हाफ मल्टीप्लाई सम ऑफ पैरेलल साइड्स। ठीक है, हाफ सम ऑफ पैरेलल साइड मल्टीप्लाई बाय हाइट, ये फॉर्मूला होता है। अब देखते हैं, अब सम ऑफ पैरेलल साइड्स कौन सी है यहाँ पे, सम ऑफ पैरेलल साइड विल बी ओ ए, यहां तक आपके पास v बन जाता है। ओके, तो ओ ए एंड बी डी, ये दो पैरेलल साइड्स हैं हमारे पास, ओ ए एंड बी डी। तो ओ ए प्लस बी डी, डजंट मैटर कि आपने जो है, ये जरूरी नहीं होता बच्चे, क्योंकि पूरा ट्रेपीजियम ले रहे हैं ना, तो ये पैरेलल साइड होगी इसके, ये मत कंसीडर करना। ठीक है, ये नहीं पूरी कंसीडर करनी, क्योंकि हमने क्या लिया, ट्रेपीजियम की शेप ये होती है, ये वाली शेप होती है, इसीलिए हमने पैरेलल साइड्स ये वाली लेनी है। ठीक है, ये दोनों लेनी, ये दोनों मत लेना, ऐसे करके मत लेना। ठीक है, तो ये समझ आ गया आपको। और दूसरी चीज ये कि पैरेलल का मतलब पैरेलल होता है, डजंट डिपेंड अपॉन कि उसका साइज छोटा है या उसका साइज बड़ा है, उसका कोई फर्क नहीं पड़ेगा। उसके बाद आता है हाइट, हाइट कितनी लेंगे हम, व्हाट विल बी द हाइट हियर, हाइट हमारे पास क्या आ जाएगी, ये वाली। ठीक है, क्या कि ये जो है यहां से यहां तक जो है वो गेन कर रहा है, तो उसकी ये कितनी हो जाएगी, हमारे पास हाइट हो जाएगी। तो ये कितनी हाइट आएगी आपके पास, दैट विल बी टी, सॉरी ओडी लिख लो यहाँ पे, ओडी। क्लियर, कितने कहां से, ओ पे हमारे पास बिल्कुल यहाँ पे था, फिर एकदम से राइज किया और यहाँ पे पहुंच गया, तो इट मीन्स क्या आया ये हाइट। हाइट किससे गेन की उसने, टाइम पीरियड से। ठीक है, फिर नेक्स्ट आएगा हमारे पास, पुट वैल्यूज ही पुट करनी है और तो कुछ नहीं करना। ओ ए का मतलब क्या है, व्हाट इज ओ ए हियर, यू, और ओ बी डी क्या है हमारे पास, टोटल बी डी विल बी योर वी, तो यू प्लस वी विल बी हियर। ओ डी किसके इक्वल है, टी के इक्वल, राइट। तो ये हमारे पास किसके इक्वल आ गया, टी के इक्वल। अब देखिए हमारे पास क्वेश्चन में वेलोसिटी पोजीशन रिलेशन है, तो यहाँ पे टाइम का तो कोई रोल ही नहीं है, तो हमें टाइम को कन्वर्ट करना पड़ेगा।
इसको भी हम फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन से कन्वर्ट करेंगे। फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन हमारी होती है v माइनस यू इज इक्वल्स टू ए टी, तो v माइनस यू डिवाइड बाई ए इज इक्वल्स टू टी। यहां से आ गया, तो t की जगह पे हम यही पुट करेंगे, तो हाफ u प्लस वी इंटू v माइनस यू डिवाइड बाई ए, ये लिख सकते हैं। उसके बाद इसको v प्लस यू और इसको v माइनस यू, ये लिख सकते हैं, बिल्कुल लिख सकते हैं। a को इधर ले जाओ 2a के नीचे, और आपको मैंने पहले ही बताया है कि ये वाला क्या रिलेशन बनता है, v प्लस यू v माइनस यू। डजंट इट लुक लाइक a प्लस बी इंटू ए माइनस बी? तो a प्लस बी इंटू ए माइनस बी किसके इक्वल होता है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के इक्वल होता है। क्या होता है आपके पास, a प्लस बी ए माइनस बी। अब तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर, ये बन गया। अब एरिया अंडर द कर्व, तो इसने क्या किया, ऑब्जेक्ट ने डिस्टेंस कवर किया है ना बी तक, तो दिस विल बी योर डिस्टेंस। ठीक है, तो 2a को इधर ले जाओ, तो 2as इज इक्वल्स टू वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर। तो इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर इज इक्वल्स टू 2as। सो दिस विल बी योर थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन। आई होप दिस इज क्लियर टू यू। आपको समझ आया कि थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन हमने कैसे निकाली है, राइट? We'll talk about something about यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन। यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन क्या होता है हमारे पास, ठीक है? इसका मतलब होता है इफ एन ऑब्जेक्ट इज मूविंग इन सर्कुलर पाथ, इफ एन ऑब्जेक्ट इज मूविंग इन सर्कुलर पाथ में अगर कोई भी ऑब्जेक्ट आपका जो है वो मूव करता है विद यूनिफॉर्म स्पीड के साथ अगर वो ट्रैवल करता है, तो उस मोशन को क्या बोलेंगे, यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन। ठीक है, इसकी वेरी सिंपल एग्जांपल आपके पास क्या आ सकती है, किसकी एग्जांपल आप दे सकते हो? यहाँ पे हमारे पास जो मोशन होता है क्लॉक का, उसमें इसके हैंड्स जो है वो वर्क करते हैं ना, मूव। ये आपके पास जो इसके हैंड्स होते हैं दे आर मूविंग, मिनट वाला, सेकंड वाला। ठीक है, तो बेसिकली ये क्या है, एक सर्कुलर पाथ है। ठीक है, तो हमारे पास अगर मैंने वेलोसिटी निकालनी है यहाँ पे, तो वेलोसिटी आपके पास क्या होती है, डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम, राइट? तो अब यहाँ पर जो डिस्प्लेसमेंट स्ट्रेट लाइन नहीं है, सर्कुलर में है, तो इसका सरकमफ्रेंस लेंगे। तो इसका मतलब क्या हो जाएगा, सरकमफ्रेंस डिवाइड बाय टाइम, सरकमफ्रेंस डिवाइड बाय टाइम। तो सरकमफ्रेंस क्या आएगा, 2 पाई आर डिवाइड बाय टी। सरकमफ्रेंस इज 2 पाई आर डिवाइड बाय टी। टी इज द टाइम टेकन, तो पूरा टाइम देता है। ठीक है, और एक चीज आपने याद रखनी है कि यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन में स्पीड इज ऑलवेज कांस्टेंट। स्पीड जो है हमेशा कांस्टेंट रहती है, स्पीड इज ऑलवेज कांस्टेंट, लेकिन मैग्नीट्यूड जो है वो कांस्टेंट रहेगा, लेकिन डायरेक्शन तो चेंज होती रहती है। इट मीन्स वेलोसिटी की जो डायरेक्शन, वेलोसिटी रिप्रेजेंट मैग्नीट्यूड एज वेल एज डायरेक्शन, तो मैग्नीट्यूड विल बी सेम, मैग्नीट्यूड सेम एंड डायरेक्शन चेंजेस। डायरेक्शन जो है वो चेंज होती रहेगी, मैग्नीट्यूड जो है वो सेम रहेगा। क्लियर? सो इसलिए मैग्नीट्यूड अगर उसका डायरेक्शन अगर चेंज हो रही है, तो हमारी एक्सेलरेशन जो है वो डायरेक्शन के कंसेप्ट के साथ ही होती है। तो इट मीन्स हमारे पास जो यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन है, इसको यूसीएम भी बोलते हैं, यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन, तो ये क्या हो जाएगा, एक एक्सलरेटेड मोशन हो जाएगा। यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन क्या, कैसा मोशन हो जाएगा, एक्सलरेटेड मोशन हो जाएगा। फर्स्ट क्वेश्चन सेज a ball is gently dropped from a height of 20 meters. 20 meters की हाइट से बॉल को ऊपर से नीचे फेंका गया। यहाँ पे बॉल थी, इसको ऊपर से नीचे फेंका गया। कहाँ, कितनी हाइट से, 20 मीटर की हाइट से। उसकी वेलोसिटी जो है वो एट द रेट ऑफ 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर से इंक्रीज करती है नीचे आते हुए। तो किस वेलोसिटी से वो बॉल जो है वो नीचे ग्राउंड को स्ट्राइक करेगी और कितने टाइम के बाद वो स्ट्राइक करेगी। सो पहले तो हम वो लिखेंगे जो हमें गिवन है। तो गिवन में हमारे पास क्या क्या है, फर्स्टली हमारे पास गिवन में दे रखा है हाइट मतलब डिस्टेंस, s इज इक्वल्स टू 20 मीटर, ठीक है, और 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। पर सेकेंड स्क्वायर का मतलब एक्सलरेशन इज गिवन 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। सो हमने निकालनी है फाइनल वेलोसिटी जब वो नीचे आ जाता है। फाइनल वेलोसिटी हमने निकालनी है, तो इनिशियल कितनी हो जाएगी, ऊपर बॉडी रेस्ट पे ही है अभी, उसके बाद गिरना शुरू होगी, तो इनिशियल वेलोसिटी विल बी 0। U फॉर इनिशियल वेलोसिटी, V फॉर फाइनल वेलोसिटी। ठीक है, तो अब यहाँ पे हमने पहले क्या निकालना है, सबसे पहले हम फाइनल वेलोसिटी निकालेंगे। अब हमने ये देखना है, हमारे पास 3 रिलेशंस हैं। एक तो V इक्वल्स टू U प्लस AT,
और दूसरा यू एस इज इक्वल्स टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, और तीसरा वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर इज इक्वल्स टू 2as। ये 3 रिलेशंस हैं। अब 3 रिलेशंस में से देखिए यहाँ पे भी टी यूज हो रहा है, यहाँ पे भी टी यूज हो रहा है, लेकिन हमें टी दिया नहीं हुआ। अगर हम ये वाला यूज करें तो हमें v निकालना है, u गिवन है, a गिवन है और s गिवन है, तो यहां से हम इजिली v की वैल्यू निकाल सकते हैं। सो हम ये रिलेशन यूज करेंगे फ्रॉम रिलेशन, कौन सा रिलेशन, फ्रॉम रिलेशन v स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर इज इक्वल्स टू 2as। v स्क्वायर हमने निकालना है, u की वैल्यू 0 है, 2 इंटू a हमारे पास 10 दे रखा है और s हमारे पास 20 दे रखा है, तो v स्क्वायर इज इक्वल्स टू 400। v स्क्वायर मेरे पास कितना आ गया, 400 आ गया। v स्क्वायर 400 आ गया। स्क्वायर रूट लेंगे, स्क्वायर रूट टेकिंग स्क्वायर रूट बोथ साइड, टेकिंग स्क्वायर रूट बोथ साइड, तो यहाँ पे भी स्क्वायर लेंगे, यहाँ पे भी स्क्वायर लेंगे, तो इसका स्क्वायर इसके स्क्वायर रूट से कैंसिल हो गया, इसका स्क्वायर जो है इसके स्क्वायर रूट से कैंसिल हो गया, और 400 का स्क्वायर रूट आता है हमारे पास 20 मीटर पर सेकेंड, 20 मीटर पर सेकेंड। ये हमारे पास आ गई वेलोसिटी। उसने सेकंड क्या बोला है, सेकंड बोला है टाइम भी बताना है। अब टाइम तो आपको कोई भी इक्वेशन में पुट करेंगे तो वहां से आपको टाइम निकल जाएगा। तो फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन देखते हैं। फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन हमारे पास क्या है, फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन वो कौन सी है हमारे पास, दैट विल बी इक्वल्स टू v इज इक्वल्स टू u प्लस ए टी। v हमने निकाल लिया 20, u 0 है, a हमारे पास 10 है और t हमने निकालना है, राइट। तो 20 इज इक्वल्स टू 10 इंटू टी और 20 बाई 10 इज इक्वल्स टू टी, सो t इज इक्वल्स टू 2 seconds। ये हमारे पास आंसर आ जाएगा। I hope this numerical is clear to you. So here is our second question in which the question says शताब्दी एक्सप्रेस स्टार्टिंग फ्रॉम रेस्ट। रेस्ट से स्टार्ट कर रही है तो साथ साथ में गिवन लिखते जाते हैं, जैसे जैसे क्वेश्चन पढ़ते जाएंगे गिवन लिखते जाओगे तो आपको क्लियर हो जाएगा कि हमने क्वेश्चन में करना क्या है। तो u is 0 अटेन्स अ वेलोसिटी ऑफ 108 मीटर पर सेकेंड इन 2 मिनट्स, यानी v इज गिवन कितनी 108 किलोमीटर पर आवर। तो सिंपल सी बात है, पहले किलोमीटर पर आवर को मीटर पर सेकंड में चेंज करते हैं, कितना आ जाएगा 5/18 आ जाएगा, ठीक है। सो इसको कैंसिल करेंगे। फॉर यू आई एम डूइंग ए सिंपल कैलकुलेशन, 2 के टेबल पे काट देते हैं पहले 54, सो 9 6 सो इट विल बी 30 मीटर पर सेकंड। सो 30 मीटर पर सेकंड आ गया मेरे पास v, और t मेरे पास कितना आ जाएगा, यहाँ पे t इज 2 मिनट्स ऑलरेडी गिवन है, 2 मिनट्स, और 2 मिनट्स को सेकंड में कन्वर्ट करेंगे तो 2 इंटू 60 आ जाएगा, दैट विल बी इक्वल्स टू व्हाट, 2 इंटू 60 मीन्स 120 सेकेंड्स, ठीक है। फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्सलरेशन। एक्सलरेशन निकालनी है। एक्सलरेशन फर्स्ट पार्ट, एक्सलरेशन क्या होती है, v माइनस यू डिवाइड बाई टी। v कितना है 30 माइनस 0 डिवाइड बाई 120, 0 से 0 कैंसिल, 1/4 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ये मेरे पास आ गई एक्सलरेशन। सेकंड क्या निकालना है, डिस्टेंस ट्रेवल्ड। अब डिस्टेंस ट्रेवल के लिए वही बात आ जाती है दोबारा से कि हमें टाइम के बारे में कुछ नहीं इन्फॉर्मेशन है, लेकिन एक्सलरेशन गिवन है, v गिवन है, u गिवन है, और आप कोई भी फॉर्मूला यू कैन अप्लाई। आप v स्क्वायर सॉरी टाइम का हमें दे रखा है 2 मिनट्स दे रखे है ना, तो आप क्या कर सकते हो, या तो सिंपली आप ऐसे कोई भी रिलेशन का फॉर्मूला आप लगाओगे तो वहां से आपको पता लग जाएगा। तो अगर हम यूज करते हैं v स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर इज इक्वल्स टू 2as, तो v स्क्वायर कितना है, v की वैल्यू कितनी आ जाएगी हमारे पास, क्योंकि हमने डिस्टेंस निकालना है, तो v स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर डिवाइड बाय 2a आ जाएगा इज इक्वल्स टू s। v स्क्वायर की वैल्यू कितनी है 30, u 0 डिवाइड बाय 2 इंटू 1/4 है ना, तो 1/4 इज इक्वल्स टू s। ये चीज आ गई। फिर उसके बाद 30 डिवाइड, यहाँ पे हम इसको काट देंगे, 2 आ जाएगा इंटू 2, सो इट विल बी अप्रोक्सीमेटली कितना आ जाएगा आपके पास 30 का स्क्वायर करना है ना हमने, तो ये आ जाएगा 30 का स्क्वायर। 30 का स्क्वायर होता है हमारे पास 900 इंटू 2s 1800 मीटर। तो ये हमारे पास क्या आ जाएगा, डिस्टेंस आ जाएगा। दिस इज ऑल अबाउट द सेकंड न्यूमेरिकल। थर्ड न्यूमेरिकल में क्या बात करनी है कि ब्रेक अप्लाइड टू अ कार प्रोड्यूसेस एन एक्सेलरेशन ऑफ 6 मीटर पर सेकंड। अब ये एक्सेलरेशन जो है ब्रेक अप्लाई करने के बाद आई है। ब्रेक अप्लाई करने के बाद एक्सेलरेशन बढ़ेगी या कम होगी, डेफिनेटली कम होगी। तो कम होने का मतलब ये नेगेटिव एक्सेलरेशन है हमारे पास। कितनी दे रखी है, गिवन, पहले गिवन लिखेंगे, नेगेटिव एक्सेलरेशन a इज इक्वल्स टू -6 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर।
ठीक है। फिर ये ऑपोजिट डायरेक्शन में जा रही है मोशन के, उसने लिखा ही हुआ है कि ऑपोजिट डायरेक्शन टू द मोशन, तो माइनस में आ जाएगा। इफ कार टेक्स 3 सेकेंड्स, यानी टाइम हमारे पास दे रखा है 3 सेकेंड्स, रेस्ट पे आने के लिए कितना टाइम लगता है उसको, 3 सेकेंड्स लगते हैं, ठीक है। तो अगर हमारे पास रेस्ट पे आने के लिए इसको 3 सेकेंड्स लगेंगे, तो हमने कैलकुलेट करना है इनिशियल वेलोसिटी क्या होगी, u की वैल्यू कैलकुलेट करनी है, ठीक है। डिस्टेंस ट्रेवल, अब उसकी जो है इनिशियल वो तो हमें पता नहीं है, लेकिन फाइनल हमें पता है, क्योंकि उसमें रेस्ट पे आना तो फाइनल विल बी 0, ठीक है। तो फाइनल क्या हो जाएगी, 0 हो जाएगी। अगर फाइनल 0 हो जाएगी तो वहां से हमारे पास और क्या दे रखा है, हमने एक्सेलरेशन देख ली, टाइम देख लिया, और u हमने निकालना है, v हमने 0 दे रखा है, और डिस्टेंस यानी कि s निकालना है, राइट। सो पहले निकालते हैं हम इनिशियल वेलोसिटी यानी u, हमने u निकालना है, तो u निकालने के लिए सिंपल सा फॉर्मूला यूज करेंगे, v इजिकल्स टू u प्लस ए टी वाला। v 0 है, u हमने निकालना है प्लस a, -6 इंटू 3, है ना। तो ये आ जाएगा 0 इजिकल्स टू u -18, या u इजिकल्स टू 18 मीटर पर सेकेंड, ये आ गया सिंपली। फिर u की वैल्यू निकल गई, तब अब हमने आपको क्या निकालना है, डिस्टेंस निकालना। डिस्टेंस के लिए आप सेकंड या थर्ड में से कोई भी फॉर्मूला यूज कर सकते हैं। लेट्स से हमने सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन यूज किया, s इजिकल्स टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। तो इसमें से जो u है हमारे पास 18 मिल गया हमें, टाइम 3 सेकेंड्स दे रखा है, और हाफ a मतलब क्या -6, और t मतलब क्या 3 का स्क्वायर, राइट। तो यहाँ पे 3 से चला जाएगा, और 18 3 से कितने होते हैं हमारे पास, 18 3 द 54, तो 54 माइनस 9 9 3 द 27, 54 माइनस 27, तो द आंसर विल 54 माइनस 27, द आंसर विल बी 27 मीटर। सो दिस इज द आंसर ऑफ द डिस्टेंस। दिस क्वेश्चन, ये ग्राफ वाला क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन में आपको बताना है कि हमारे पास एक वेलोसिटी टाइम ग्राफ रिलेशन दे रखा है कि मोशन ए जो है वो कैसा मोशन रिप्रेजेंट कर रहा है। देखिए कंटिन्यूसली इंक्रीज कर रहा है ये, है ना। तो ये कौन सा मोशन हो गया, यूनिफॉर्म एक्सलरेटेड मोशन, यूएम, यूनिफॉर्म एक्सलरेटेड मोशन हो गया। उसके बाद उसने क्वेश्चन में क्या पूछा है कि आपने क्या निकालना है, व्हाट इज द वेलोसिटी ऑफ बॉडी आफ्टर 10 सेकेंड्स एंड 40 सेकेंड, आफ्टर 10 सेकेंड, यानी कि आपके पास अगर जो वेलोसिटी है आफ्टर 10 सेकेंड और आफ्टर 40 सेकेंड्स कितनी होगी। अब देखिए 10 सेकेंड्स पे कितनी वेलोसिटी 20 मीटर पर सेकेंड दे रखी है, और यहाँ पे कितना 40 मीटर पर सेकेंड पे, 40 मीटर पर सेकेंड पे कितनी, 40 सेकेंड्स पे कितनी दे रखी है, 0 दे रखी है। यहाँ पे कितनी है 20, और यहाँ पे कितनी दे रखी है 0। सो यानी कि हम 10 सेकेंड की बात करेंगे, तो बी पार्ट के लिए जो 10 सेकेंड पे जो वेलोसिटी आएगी दैट विल बी योर 20 मीटर पर सेकेंड, और जो आपकी 40 सेकंड पे आएगी वो कितनी आ जाएगी आपकी, यहाँ पे 0, ये वेलोसिटी यहाँ तक आ गया ना, टच कर गया तो इट मीन 0। सो सी पार्ट में हमें क्या पूछा है, सी पार्ट में हमें पूछा कैलकुलेट द नेगेटिव एक्सलरेशन। नेगेटिव एक्सलरेशन, अब देखिए कहाँ पे कौन सा ग्राफ जो है वो नेगेटिव एक्सलरेशन शो कर रहा है, BC, ये वाला पार्ट है ना, ये वाला जो है रिटार्डेड शो कर रहा है, नेगेटिव शो कर रहा है। तो इसके लिए सबसे पहले हमने क्या लिखना है, तो सबसे पहले हम लिखेंगे इसका v की वैल्यू लिखेंगे, यानी कि फाइनल वेलोसिटी हमारे पास कितनी आएगी। फाइनल वेलोसिटी हमारे पास ये है, सी पॉइंट पे चला जाता है तो फाइनल वेलोसिटी विल बी, यानी v2 ले लेते हैं, v2 इज द फाइनल, तो वो 0 हो जाएगी। और v1 कहाँ से स्टार्ट हो रहा है, 20 से स्टार्ट हो रहा है, ठीक है, कहाँ से स्टार्ट हो रहा है 20 से स्टार्ट हो रहा है, तो v1 विल बी 20 मीटर पर सेकेंड। टाइम भी चेंज हो रहा है, टाइम लास्ट में कितने पे आ जाता है, टाइम आ जाता है 40 पे, 40 सेकेंड्स, और उसके बाद कितना आ जाता है हमारे पास, मतलब फर्स्ट टाइम इनिशियली कहाँ से स्टार्ट हुआ था 30 सेकंड से। तो आपके पास एक्सेलरेशन क्या हो जाएगा, एक्सेलरेशन इज सिंपली v2 माइनस v1 डिवाइड बाई t2 माइनस t1। v2 कितना आ जाएगा 0 माइनस 20 डिवाइड बाई 40 माइनस 30, यही आएगा। तो माइनस 20 डिवाइड बाई 10 से 0 से 0 गया, -2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, ये मेरे पास एक्सेलरेशन है। आई होप आपको ग्राफिकल मेथड से ये क्लियर हो गया कि कैसे क्वेश्चन करना है। उसके बाद थर्ड है डिस्टेंस निकालना है। डिस्टेंस निकालना है आपने, कहाँ पे निकालना है, तो सबसे पहले तो ये वाले पॉइंट्स E है और ये हमारे पास F है, ठीक है। तो डिस्टेंस 10 और 30 के बीच में ये वाला डिस्टेंस निकालना है, ठीक है। अब ये वाला डिस्टेंस सिंपल आपको पता है, ये रेक्टेंगल फॉर्म हो रही है ना, तो रेक्टेंगल में लेंथ इनटू ब्रेड्थ हम लेते हैं, तो सिंपली जो हमारे पास डी पार्ट आ जाएगा वो क्या आ जाएगा, एरिया अंडर ABEF, दैट विल बी इक्वल टू ABEF किसके इक्वल हो जाएगा, AB मल्टीप्लाई बाय BE,
या कुछ भी ले सकते हो, ए बी मल्टीप्लाई ए एफ भी लिख सकते हो, ए बी मल्टीप्लाई बीई। तो ए बी कितने किसके इक्वल आ जाएगा, ए बी हमारे पास किसके इक्वल आ जाएगा, ए बी में आप देखो वेलोसिटी दोनों की सेम रह रही है, तो हम सिंपल लिख लेंगे यहाँ पे क्या 20 और बीई का मतलब क्या है, सॉरी यहाँ पे हमारे पास जो ए बी है दैट इज चेंजिंग, ए बी हमारे पास चेंज कर रहा है लेकिन वेलोसिटी इज रिमेनिंग सेम, ये वेलोसिटी जो है वो सेम रह रही है बीई, ये दैट इज रिमेनिंग सेम कितनी 20। तो ये हमारे पास जो बीई की वैल्यू है वो 20 आ जाएगी और ए बी की वैल्यू आ जाएगी 30 - 10। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, यहाँ पे हमारे पास सिंपल क्या आ जाएगा, ए बी की वैल्यू आ जाएगी हमारे पास क्या 30 - 10 मल्टीप्लाई बाय 20। तो कितना आ गया यहाँ पे 20 मल्टीप्लाई बाय 20 दैट विल बी इक्वल्स टू 400 मीटर। तो ये मेरे पास एरिया की वैल्यू है। क्लियर। क्वेश्चन इज एरोप्लेन स्टार्ट फ्रॉम रेस्ट, एरोप्लेन जो है वो रेस्ट पोजीशन से स्टार्ट कर रहा है। तो आप सबसे पहले गिवन लिखेंगे, तो गिवन में इनिशियल पोजीशन u इज इक्वल्स टू 0 और उसने उसके बाद एक्सेलरेशन गेन की, तो एक्सेलरेशन हमें दे रखी है 3 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, राइट। फिर उसके बाद हमने क्या बोला है कि टेक रन फॉर 30 सेकेंड्स, मतलब पहले चलता है फिर ऊपर उड़ता है, तो टेक रन कितना मतलब 35 सेकंड का हमें रन दे रखा है। तो आपने क्या फाइंड करना है यहाँ पे कि जो रनवे मतलब चलने का जो उसका वो था टेक ऑफ करने से पहले उसकी स्पीड कितनी थी, ठीक है, उसकी आपके पास स्पीड कितनी थी यानी वेलोसिटी कितनी थी, फाइनल वेलोसिटी निकालनी है और एस निकालना है। तो सबसे पहले वी टी और ए दे रखा है, तो सबसे पहले हम वी निकाल लेंगे। तो फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन से तो v इज इक्वल्स टू u प्लस ए टी आएगा, ठीक है। तो यहाँ पे v की वैल्यू हमने निकालनी है, तो u किसके इक्वल आ जाएगा, u 0 है, a हमारे पास 3 है और t हमारे पास 35 है। तो v इज इक्वल्स टू 5 और यहाँ पे कितना आ जाएगा 105 मीटर पर सेकंड, 105 मीटर पर सेकंड क्या हो जाएगी वेलोसिटी, ठीक है। उसके बाद सेकंड हमारे पास क्या आता है कि हमने लेंथ निकालना, एस निकालना है। तो एस के लिए यूटी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर वाला डायरेक्ट फॉर्मूला हम अप्लाई करेंगे। एस निकालना है, यू हमारे पास 0 है तो ये भी 0 हो जाएगा, तो हाफ ए यानी 3 मल्टीप्लाई टाइम आ जाएगा 35 का स्क्वायर, राइट। तो एस इज इक्वल्स टू किसके इक्वल आ जाएगा, ऐसा हमारे पास 35 3 मल्टीप्लाई बाय 35 का स्क्वायर करेंगे डिवाइड बाय 2 करेंगे। सो अप्रोक्सीमेटली ये हमारे पास कितना आ जाएगा 3/2 मतलब 1.5 इंटू 35 का स्क्वायर, ओके। मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास 35 का स्क्वायर जो है वो 1225 आएगा, तो 15/10 तो ये आ जाएगा आपके पास 18375। तो ये नीचे 10 है तो इसका पॉइंट लग जाएगा, तो दिस विल बी द आंसर मीटर में। क्लियर। यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन है कि साइक्लिस्ट ने क्या किया है, 5 राउंड्स कंप्लीट किए हैं अपने और सर्कुलर ट्रैक में रेडियस हमें 21 मीटर दे रखा है और 12 मिनट्स में किए हैं, ठीक है। तो सबसे पहले हमें पता है कि हमने स्पीड निकालनी है, तो स्पीड का फॉर्मूला होता है 2πr डिवाइड बाय टी, है ना। तो 2πr, r इज रेडियस इज ऑलरेडी गिवन दैट इज 22 और टाइम हमें कितना दे रखा है 12 मिनट्स, 12 मिनट्स मतलब 12 मल्टीप्लाई बाय 60, तो ये हमारे पास आ जाएगा। क्लियर। तो 12 मल्टीप्लाई बाय 60 आ जाएगा, लेकिन उसने बोला है साथ में कि 5 राउंड यानी यहाँ पे n मल्टीप्लाई करेंगे हम, तो 5 मल्टीप्लाई हो जाएगा। क्लियर। तो यहाँ पे कितना वैल्यू आ जाएगा 6 और ये गया 11 के साथ और ये हमारे पास आ गया 12, तो यहाँ पे 2 3 तो ये हमारे पास आ जाएगा आपके पास 22/7 मल्टीप्लाई बाय 11 डिवाइड बाय 3 मल्टीप्लाई 12। तो ये हमारे पास क्या वैल्यू आ जाएगी आपके पास, इसको कैंसिल हो सकता है कहीं पे नहीं, तो हमें इसको क्या करना पड़ेगा मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो मल्टीप्लाई करने के लिए यहाँ पे हमारे पास 22 मल्टीप्लाई 11 दैट विल बी 242 डिवाइड बाय 21 मल्टीप्लाई बाय 12, 21 मल्टीप्लाई बाय 12 अगर हम करेंगे तो वी आर हैविंग 252, ठीक है। 242 डिवाइड बाय 252, तो इट शुड गेट कैंसल आउट समवेयर, यस। यहाँ पे 11 यहाँ पे 6, यस यहाँ पे कैंसल आउट हो रहा है। तो अब 121 डिवाइड बाय ये आ जाएगा आपके पास 126, ठीक है। तो ये हमारे पास आएगा, तो आंसर विल बी अप्रोक्सीमेटली पॉइंट में आएगा आपका। तो पॉइंट में कितना आंसर आना चाहिए, यहाँ पे टाइम हमें 12 मिनट्स दे रखा है, तो 12 इंटू 60 हमने कर दिया, ठीक है। तो ये हमारे पास, आप इसको यहीं पे भी छोड़ सकते हो, दैट विल बी मीटर पर सेकंड, सिंपल यहाँ पे छोड़ दीजिए, दैट विल बी मीटर पर सेकंड। सो लेट्स मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन कि हमारे पास एक आर्टिफिशियल सैटेलाइट है, आर्टिफिशियल सैटेलाइट जो सर्कुलर पाथ में मूव कर रही है।
अब जो सर्कुलर पाथ में मूव कर रही है उसका रेडियस हमें दे रखा है कितना 42250। 42250 जो है हमारे पास क्या दे रखा है, इसका डिस्टेंस दे रखा है। स्पीड कैलकुलेट करनी है 24 आवर्स में। 24 आवर्स में क्या करनी है, स्पीड कैलकुलेट करनी है। और इसमें हमने ये बताना है कि आपका जो कितना स्पीड लगेगी अगर कि वो 24 आवर्स लेती है उसको कंप्लीट करने के लिए। तो सबसे पहले हमें रेडियस दे रखा है, रेडियस कितना है, रेडियस हमें दे रखा है 42250 किलोमीटर। फिर टाइम दे रखा है कितना रिवॉल्व करती है 24 आवर्स। 24 आवर्स को पहले तो कन्वर्ट कर लेंगे 24 into 60 into 60। सो ये अप्रोक्सीमेटली 864 into 00 सेकेंड्स आ जाएगा आपके पास। उसके बाद स्पीड निकालनी है। स्पीड किसकी इक्वल होती है, v इक्वल्स टू 2πr डिवाइड बाय 2, है ना। तो 2 मल्टीप्लाई बाय 22/7 मल्टीप्लाई r कितना है 42250 और t की वैल्यू कितनी आ जाएगी 86400। हमारे पास क्या आएगा कि इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो इट विल बी 44 मल्टीप्लाई 4225 डिवाइड बाय 7 मल्टीप्लाई 8640। ऑल्दो कैलकुलेशन इज लिटिल बिट टफ बट यू कैन इजीली कैलकुलेट इट। 22 आ जाएगा तो यहाँ पे क्या आ जाएगा 4320। फिर से जाएगा 11 पे तो ये जाएगा 2160। अब ये 2160 किसी पे जा रहा है, अगर हम यहाँ पे नहीं, ये 2160 किसी पे नहीं जाएगा। सो आपको क्या करना पड़ेगा, इसको डिवाइड करना पड़ेगा और जो भी आप डिवाइड करके इसको लिखेंगे सो आपका आंसर आने वाला है 3.07 किलोमीटर पर सेकेंड में। किलोमीटर पर सेकेंड में हमने किलोमीटर पर सेकेंड में निकाला है, आप चाहे तो मीटर पर सेकेंड में निकाल सकते हो, उसका कोई प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है। Okay students, this is all about the chapter and all about these numericals. So I hope कि आपको ये numericals समझ में आए होंगे। I am providing you the formula list of the motion chapter. और उसके अलावा अगर आप चाहते हैं that I will make another video on combination of the numerical whatever we have covered in the topics. So आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताइए प्लीज कि अगर आपको चाहते हैं कि मैं numericals और परफॉर्म करूं यहाँ पे और बताऊं आपको numericals के, अगर आपको कोई numerical नहीं समझ आ रहा तो वो भी आप मुझे कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। और उसके अलावा आपको आई होप कि ये वीडियो अच्छा लगे और आपको इक्वेशन ऑफ मोशंस के बारे में इजीली अंडरस्टैंडिंग हो जाए। सो आई होप दिस कि आप लोगों को कोई भी प्रॉब्लम जो आती है वो आप इजीली इस वीडियो को देख के सॉर्ट आउट कर सकें।